اوقاف پر غیر قانونی قبضے کے خلاف الہ آباد میں حکومت کی طرف سے بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم سے شہر کے سب سے بڑے کالا ڈانڈا قبرستان پر کیے گئے تمام غیر قانونی قبضوں کو منہدم کر دیا گیا۔ کالا ڈانڈا قبرستان پر غیر قانونی طریقے سے 70 سے زیادہ مکانات تعمیر کر لیے گئے تھے۔ قبرستان پر غیر قانونی قبضے کے خلاف لمبی قانونی لڑائی کے بعد الہ آباد ہائی کورٹ نے مقامی انتظامیہ کو قبضوں کو منہدم کرنے کا حکم دیا تھا۔ خاص رپورٹ۔ الہ آباد کا سب سے بڑا اور پرانا کالا ڈانڈا قبرستان پر غیر قانونی قبضوں کا سلسلہ برسوں پرانا ہے۔ وقف مافیاؤں نے قبرستان کے ایک بڑے حصے پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ مافیاؤں نے قبرستان کی زمین پر نہ صرف قبضہ کیا تھا بلکہ اس پر 70 سے زیادہ پختہ مکانات بھی تعمیر کرا لیے تھے۔ اس غیر قانونی قبضے کے خلاف قبرستان انتظامیہ کمیٹی نے الہ آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ گزشتہ مہینے الہ آباد ہائی کورٹ نے مقامی انتظامیہ کو سخت ہدایت دی تھی کہ وہ غیر قانونی قبضے کو منہدم کرنے کے بعد 5 جولائی کو اپنی رپورٹ پیش کرے۔ آج تو یہ پرستاوت تھا مانیہ اچ نیالے کا آدیش اور وقف بورڈ دونوں کا آدیش پہلے سے ہے، اور تیاری ہم لوگ کی پچھلے ہی 11 تاریخ کو تھی، لیکن کنہیں کارنوں سے نہیں ہو پایا۔ وہ ایکسٹینڈ کرتے آج ڈیٹ نشچت کیا گیا تھا، اور جتنا اتکرمن ہے، پکا نرمان ہے، سب ہٹایا جا رہا ہے۔ دیکھیے، یہ تو پولیس اور پرشاسن دونوں کا سہیوگ لے کر کیا جائے گا، اور فی الحال قبضہ ہٹ جائے، اس کے بعد سے سمبندھت تھانہ ادھیکش کو نردیش رہیں گے، اور ہمارے سے وقف نریچک سمے پہ اس کا آ کے سروے کریں گے تاکہ نیا کوئی اتکرمن اس پہ نہ ہو۔ کالا ڈانڈا قبرستان پر سے غیر قانونی قبضہ ہٹانے کے لیے قبرستان انتظامیہ کمیٹی کو ایک لمبی قانونی لڑائی لڑنی پڑی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود مقامی انتظامیہ نے قبرستان پر سے قبضہ ہٹانے میں آناکانی کی، لیکن ہائی کورٹ کے سختی کے بعد مقامی انتظامیہ کو غیر قانونی قبضوں کو منہدم کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ غیر قانونی تعمیرات کے انہدام کے وقت کسی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس انتظامیہ نے بڑے پیمانے پر انتظام کیا تھا۔ حالات سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ نے قبرستان میں RAF اور بڑی تعداد میں پولیس فورس تعینات کر رکھی تھی۔ ہم آپ کے مادھیم سے، آپ کے ذریعے ضلع ایڈمنسٹریشن کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کارروائی کو کرانے کے بعد یہاں کی دیکھ ریکھ خلد آباد تھانے کے سپرد کری جائے تاکہ دوبارہ لوگ بسیں نہ، ورنہ قبرستان میں قبضہ ہٹانے کے بعد لوگ دوبارہ بس جاتے ہیں، دوبارہ بنا لیتے ہیں۔ ریکنسٹرکشن نہ ہونے، اگر اس کو روکنے میں کامیاب ہوا پرشاسن تو یہ کامیابی مانی جائے گی، ورنہ قبرستان پھر اس طرح سے ہی پڑے رہیں گے، اور مردوں کی جگہ پہ زندوں کو رہنے کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کمیٹی نے یہ سوچا کہ جتنا گورنمنٹ نے باؤنڈری کرائی ہے، باؤنڈری وال، پہلے اس کو ہم لوگ سرچھت کر لیں۔ فی الحال ہائی کورٹ کے حکم سے مقامی انتظامیہ نے قبرستان پر بنے 70 سے زائد غیر قانونی مکانات کو منہدم کر دیا ہے۔ قبرستان کمیٹی کا کہنا ہے کہ قبرستان کو غیر قانونی قبضے سے پاک کرنے کے بعد اس کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا جائے۔ کمیٹی کا مطالبہ ہے کہ قبرستان کو لیڈ مافیاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہاں مستقل طور پر پولیس فورس تعینات کی جائے۔ نیوز 18 اردو کے لیے الہ آباد سے مشتاق عامر کی رپورٹ۔ بابری مسجد کے تعلق سے اٹھنے والی آوازوں پر ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفر یاب جیلانی نے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ جمہوریت ہے، اس میں ہر شخص کو اپنی رائے دینے کا پورا حق ہے، لیکن محض کچھ آوازوں کے اٹھنے سے نہ اکثریت کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی شریعت اور عدلیہ کے تقاضوں کو پس پشت ہی ڈالا جا سکتا ہے۔ لہٰذا بابری مسجد ایکشن کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے اپنے موقف پر قائم ہے۔ پیش لکھنؤ سے طارق قمر کی یہ رپورٹ۔ ایودھیا کے تاریخی تنازع کے پس منظر میں مختلف قسم کی رائے سامنے آتی رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی حال میں بھی مقام عبادت نہیں چھوڑیں گے، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ مسجد مشروط شرائط کے ساتھ ہندو بھائیوں کو دے کر اس قضیے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، اور مقدمے کے ذمہ دار فریقوں کے پاس عدلیہ کے فیصلے کو ماننے کے لیے اپنے جواز و جواب موجود ہیں۔ آل انڈیا فورم فار ایودھیا ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ ایک ایسی ہی تنظیم ہے جس کے ممبران مسجد چھوڑنے کی بات کرتے ہوئے باقاعدہ تحریک چلا رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کو گفٹ کر دینا چاہیے، دے دینا چاہیے ان کو، تاکہ ہم لوگوں کا سوہاد بنا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اور مسجدیں اور جو کلیم کر رہے ہیں لوگ، شر پسند لوگ، ہم لوگ جو ہے اس پہ روک لگے۔
ये 1991 में एक एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि धार्मिक को नहीं पूछी जाएगी, लेकिन उसमें बाबरी मस्जिद तनाज़ा बना हुआ है, तो उस तनाज़े को ख़त्म करके बाकी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और उसके बाद जितने ये मस्जिदें उस पर सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी मोहर लगावे कि इसके बाद दूसरा मामला नहीं उठाया जाएगा। सबके अपने नजरिए और अपने मुतालबे हैं और अपनी राय जमहूरियत में कोई भी दे सकता है, लेकिन किसी भी ऐसे नजरिए या राय और अमल के पीछे कितने सवाल, कितनी पेचीदगियां और मसाइल होते हैं, ये कम लोग समझ पाते हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी के लिए इस तरह के मुतालबे आम बात है। ये बिल्कुल उसी तलाक सलासा के कानून की तरह है जिसे बनवाने के लिए चंद खवातीन सामने लाई जाती है। आज ये जमहूरी मुल्क है, किसी को अपनी राय देने से रोका नहीं जा सकता, और अब 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, उसमें अगर 1% से कम यानी 1000, 2000, लाख, 2 लाख लोगों को अलग राय रखें तो वो कम्युनिटी की राय नहीं मानी जा सकती। तो इसलिए उनकी राय की कोई वैल्यू तो नहीं है, चाहे वो 100 आदमी हो, चाहे 200 हो, चाहे 1000, 2000, 10, 1 लाख, 2 लाख भी हों, लेकिन बहरहाल सुनने वाला तो सुनेगा, तो उन्हें सुनना पड़ता है इनकी राय को भी, और कभी कभी उससे मुतासिर भी लोग होते हैं। हालांकि मज़कूरा तंजीम की तरफ से दस्तखती मुहिम भी चलाई जा रही है और बनारस और अयोध्या में मुकीम हिंदू समाज के चंद लोगों के साथ मीटिंगें भी हुई हैं, लेकिन अमीर हैदर की जानिब से अभी इसको सीग़े राज में रखा गया है। इस तहरीक को कामयाबी मिलेगी या इसका जनाजा निकल जाएगा, ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिल वक्त तो एक्शन कमेटी और पर्सनल लॉ बोर्ड अपने देरीना मौक़िफ़ पर ही है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। सफर हज के लिए आज़मीन की रवानगी से पहले हज ट्रेनिंग कैंपों के इनेकाद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हज कमेटी के अलावा मुख्तलिफ मुस्लिम समाजी और मिली तंजीमों की जानिब से हज तरबियती कैंपों का इनेकाद किया जाता है। इसी सिलसिले में अहले तशी आज़मीन के लिए आखिरी तरबियती कैंप का इनेकाद मेरठ के मनसबिया अरबी कॉलेज में किया गया, जिसमें प्रोजेक्टर के जरिए आज़मीन हज को हज के अरकान और ज़रूरी मालूमात फराहम करवाई गई। मुल्क के दीगर बड़े शहरों की तरह मेरठ में भी मुतादिद हज तरबियती कैंपों का इनकाद किया जाता है। इनमें कई कैंप समाजी और मिली तंजीमों और कमेटियों की जानिब से भी मुनक्किद किए जाते हैं। शहर और अतराफ के अहले तशी आज़मीन हज के लिए इसी सिलसिले के आखिरी हज तरबियती कैंप का इनकाद मनसबिया अरबी कॉलेज में मदरसा इंतजामिया की जानिब से किया गया। अरकान हज की तरबियत और ज़रूरी मालूमात फराहम कराने के मकसद से मुनक्किद किए गए इस कैंप में जहां प्रोजेक्टर पर वीडियो और तस्वीर के जरिए आज़मीन हज को अहम जानकारियां फराहम की गईं, वहीं तरबियत की रिकॉर्डिंग को व्हाट्सएप और यूट्यूब के जरिए भी आज़मीन तक पहुंचाने की कोशिश की गई। खसूसियत के साथ हम उन तमाम चीज़ों को बताना चाहते हैं ताकि कोई भी इंसान जो पहली मरतबा ख़ास तौर पर हज पे जा रहा है वो उन चीज़ों को याद कर ले और फिर ऐसे कोई हराम काम अंजाम ना होने पाए कि जिसकी बुनियाद के ऊपर उसको वो परेशानी वाक़ हो और वो सही तौर पे अपने अमल को अंजाम ना दे सके, हज को मुकम्मल ना कर सके। इस चीज़ों के दरमियान में कुछ तो वो हैं कि जो मर्दों औरतों दोनों के ऊपर हराम होती हैं, कुछ वो हैं जो खालिस मर्दों पर हराम है, कुछ वो हैं कि जो खालिस औरतों पर हराम है। तो वो 30 चीज़ें मुकम्मल हैं, उनको बयान मुकम्मल तौर पर यहाँ किया जाएगा, ख़वातीन को बताया जाएगा। आज़मीन हज के मुताबिक प्रोजेक्टर से अरकान हज और मकामात की जानकारी को वीडियो क्लिप और तस्वीर के जरिए समझने में ज़्यादा सहूलत होती है। जिस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है और जिस तरीके से वो बता रहे हैं, हमने ख्वाब और ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके के जो अरकान हैं जो है वो जो है हज के अंदर हैं वो हमें जो है पहले से मालूम हो पाएंगे। हो सकता है अगर हम इस ट्रेनिंग में नहीं आते तो बहुत सारी चीज़ें हमसे वहाँ से छूट जाती हैं, इसलिए ये जो बताया गया है ये प्रॉपर तरीके से बताया जा रहा है। मैंने ये महसूस किया है कि हमारी बिरादरी के स्तर पर ऐसे कैंप बड़े लेवल पर नहीं होते, और जो महसूस किया उस महसूस की कमी को पूरा करने के लिहाज से ये मनसबे में एक प्रोग्राम रखा गया है, और इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम हर साल मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ ये करेंगे, जिससे कि जो हज पर लोग जाते हैं उनके पूरे फ़ज़ाइल पूरे हो सकें। रियासत उत्तर प्रदेश से हर साल हज़ारों की तादाद में आज़मीन सफ़र हज के लिए रवाना होते हैं, जिनमें बड़ी तादाद पहली मर्तबा सफ़र हज पर जाने वाले आज़मीन की होती है। ख़ास तौर पर ऐसे अफराद के लिए
इस तरह प्रोजेक्टर पर वीडियो और तस्वीर के जरिए तरबियत फराहम कराने वाले कैंप काफी फायदेमंद साबित होते हैं। मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। और उधर आज़मीन हज की टीकाकारी के लिए आज मेरठ में आखिरी वैक्सीनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। मदरसा नूरुल इस्लाम में मुनक़िदा इस आखिरी कैंप में 176 आज़मीन हज को टीके लगवाए गए, दवा पिलाई गई। अब तक मुनक़िदा 4 कैंपों में 1400 से ज्यादा आज़मीन हज को टीका लगाकर सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। ताहम अब भी वेटिंग लिस्ट के कई आज़मीन हज टीका लगवाकर सर्टिफिकेट हासिल करने से कासिर हैं। रियासती हज कमेटी की लापरवाही की वजह से वेटिंग लिस्ट के आज़मीन की फहरिस्त अब तक नहीं भेजी जा सकी और ऐसे में बचे हुए आज़मीन हज की टीकाकारी के लिए जिला अस्पताल में खास इंतजाम किया जा रहा है। हमारा ये है कि तकरीबन 1400 या 1450 के करीब हाजियों को दवा पिला दी गई है, लेकिन क्योंकि टोटल लिस्ट जो हमारे पास है वो 1522 का है जिन लोगों की लिस्ट है, और इसके अलावा कुछ वेटिंग लिस्ट भी हैं। और वेटिंग लिस्ट क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुई है और उनकी लिस्टें आई नहीं है, तो उसका अंदाज़ा ये है कि शायद 2 तारीख को आएगी। तो 3 तारीख को रात को 11 बजे करीब फ्लाइट जा रही है पहली। तो इस तरह से 3 तारीख तक उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह जितने हाजियों की लिस्टें आ जाएंगी, जितने हाजियों को टीके लगने हैं सबके तकरीबन टीके लग जाएंगे। वतन अजीज के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर देने वाले बहादुर फौजियों में परमवीर अब्दुल हमीद का नाम खास अहमियत का हामिल है। आज ही के दिन यानी 1 जुलाई 1933 को यूपी के गाजीपुर जिले में एक आम मुस्लिम घराने में पैदा हुए हमीद को बचपन से ही बहादुरी के काम करने में मजा आता था। साल 1962 की हिंदुस्तान और चीन की जंग में भी हमीद को बतौर फौजी मुल्क की खिदमत अंजाम देने का मौका मिला। हालांकि दुश्मन के छक्के छुड़ाने की उनकी तमन्ना 1965 की जंग में पूरी हुई। हमीद के इस जज्बे को सलाम करते हुए फौज ने उन्हें अहम तरीन अवार्ड परमवीर चक्र से नवाजा। ये तमगा उनकी बेवा रसूलन बी ने हासिल किया। अब्दुल हमीद की याद में सरहद पर उनका मजार तामीर किया गया, जहां हर साल यौम शहादत के मौके पर खास तकरीब का इनेकाद किया जाता है और मुल्क को अपने इस वीर सपूत पर नाज है। डॉक्टर्स को मसीहा कहा जाता है, लेकिन कानपुर के हिलेट अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से अलग ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से एक मरीज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। इटावा के रहने वाले मरीज उदय सिंह ने पैर का ऑपरेशन करवाया। इसके बाद उन्हें खून की जरूरत पड़ी और लापरवाही की वजह से उन्हें ओ पॉजिटिव के बजाय ए पॉजिटिव का खून चढ़ा दिया गया। अस्पताल इंतजामिया इस इल्जाम की तरदीद कर रहा है। डॉक्टर नहीं, वो तो ब्लड बैंक में वेरीफाई कर देंगे कि ब्लड ग्रुप कौन सा लगा है और कौन सा था, वो तो इमीडिएट हो जाएगा। किसी को आपने कहा है? वो हमने कह दिया है, तो उन लोगों ने वैसे देख के बता दिया है कि सेम था, कोई बदला नहीं है। पर ये फिर भी ऐसा कहते हैं तो फिर दिखवा देंगे, मरीज देख लें, खुद मरीज जाके देख लेंगे, क्योंकि दिखवा लिया है और ये चीज सही पाई गई है कि वो ब्लड ग्रुप वही था उसका। हम लोग तो यहाँ से बता सकते हैं कि यहाँ से सही उसको ब्लड ग्रुप गया, यहाँ से जो हमने दिया वो ओ पॉजिटिव था। यहाँ से ब्लड जाने के बाद क्या हुआ उसके बारे में तो देखिए हम कुछ नहीं कह सकते। मेरे मरीज का ब्लड ग्रुप ओ था, ओ पॉजिटिव, ब्लड बैंक के द्वारा से पहुंचा ए पॉजिटिव, और वहाँ जो जूनियर डॉक्टर चढ़ा रहे थे बिना रिपोर्ट मैच किए ब्लड की, और उन्होंने चढ़ा दिया ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव मरीज को। फिर उसको भयंकर से भयंकर रिएक्शन आने लगे, उसके शरीर में चकत्ते पड़ने लगे। जब चकत्ते पड़ने लगे तो उन्होंने जो है उसको रोक दिया, और रोकने के बाद इंजेक्शन देकर वो चकत्ते ठीक कर दिए। फिर इसके बाद कहे कि जो है अब इसका ब्लड का रिएक्शन सही होगा, और उसको उल्टी होना, वोमिटिंग, नौसिया, वोमिटिंग चालू हो गई। अलीगढ़ में जिला इंतजामिया की ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने के लिए नई पहल ने लोगों को हेलमेट पहनने पर मजबूर कर दिया है। सड़क हिफाजती हफ्ते के तहत अलीगढ़ इंतजामिया ने खास अहकाम जारी किए थे कि बगैर हेलमेट अब पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, जिसका असर देखने को मिला और लोगों ने हेलमेट लगाना शुरू कर दिया। कुछ लोग अभी भी इसकी पाबंदी नहीं कर रहे हैं, तो वहीं पेट्रोल मालिकान उन्हें बगैर पेट्रोल दिए ही वापस भी लौटा रहे हैं।
एक्सप्लोरिंग द माइंड ट्रस्ट की जानिब से इस्लामिक समर कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तौहीद, शिर्क, ईमान, इखलाक, इबादत के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर खुसूसी लेक्चर का इनेकाद किया गया। इस्लामिक समर कैंप के अख्तिताम पर तलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली नौजवान अदाकारा ज़ारा वसीम के जरिए अदाकारी को खैराबाद कहने का फैसला इन दिनों मौजूए बहस है। ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के सेक्रेटरी हुज़ैफा आमिर रशादी ने उनके फैसले का इस्तक़बाल करते हुए इसकी सताइश की। वहीं फैसले पर तनकीद करने वालों ने नुसरत जहां का सिंदूर लगाना और वसीम रिजवी के जरिए जय श्री राम का नारा लगाने को याद करने की सलाह दी। बिहार में एक बार फिर से पसमानदा मुसलमानों को हुकूक दिलाने के नाम पर मुहिम शुरू हो गई है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम मुहाज के कौमी सदर अली अनवर ने इल्जाम लगाया कि मुस्लिम तंजीमों की जानिब से दलित और पसमानदा मुसलमानों के मसले पर गौर खौज नहीं किया जा रहा। अली अनवर के मुताबिक सियासत में मुसलमानों की नुमाइंदगी लगातार घट रही है और ऐसे में पसमानदा और पिछड़े मुसलमान बिल्कुल ही हाशिए पर आ गए हैं। इनका नाम दाढ़ी और टोपी देख करके इनको किनारे अब ये हो रहे हैं, सारी पार्टियां कर रही हैं। तो पसमानदा जो जिनके उन लोगों के नीचे, पैर के नीचे तो जमीन है नहीं, धन है, दौलत है, इदारों पर कब्जा है, लेकिन आबादी, जमहूरियत में आबादी, जमहूरियत वह तर्ज हुकूमत है जिसमें इंसान को गिनते हैं। मुस्लिम तंजीमें हमेशा साथ देती रही हैं। हमारे कौम के अंदर जो भी निचले पायदान पर है उसको हमेशा मेन स्ट्रीम में लाने की हमारे मुस्लिम तंजीमें कोशिश की है। अगर आप ये चाहते हैं कि हम लोग रोड पर आएँ तो उस पर भी हमारी तंजीमें आपका साथ देने के लिए तैयार है। यहाँ जितना मुसलमान है सब कुचला पिछड़ा है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, वो सब का सब एक प्लेटफॉर्म पर आवे, एक लड़ाई लड़े, सबों का फायदा होगा इंशाअल्लाह। नहीं, हम तो तमाम दलित को, बल्कि वो फॉरवर्ड भी जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं कहीं, हम उनको भी एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं कि ताकि वो सारे इंसान हैं, सब खुदा की नेमत में से एक नेमत इंसान भी है। हम सबों की लड़ाई एक साथ लड़ना चाहते हैं, सबों को हम मुसावात का दर्जा दिलाना चाहते हैं। इस्लाम की बुनियादी बातें हैं। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम मुहाज के बयान पर इमारत शरिया बिहार ने कहा है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो गई है और ऐसे में दलित और पसमानदा मुसलमानों की बात और इख्तिलाफात से मुसलमानों का ही नुकसान हो रहा है। इमारत का यह भी कहना है कि मुस्लिम तंजीमों की जानिब से मुसलमानों के हल की जद्दोजहद की जा रही है। इमारत के मुताबिक गरीब मुसलमानों का मसला ज्यादा संगीन है और इस ताल्लुक से मुत्तहिद होकर काम करने की जरूरत है। जो गरीब मुसलमान हैं उनके ज़्यादा मसाइल हैं, इसलिए इमारत शरिया या जो मिली तंजीमें हैं वो हमेशा तमाम मुसलमानों के मसले को मसला बनाकर पेश करती हैं। जो लोग इनफरादी तौर पर किसी ख़ास बिरादरी के मसले को हल कर रहे हैं या कराना चाहते हैं, ज़रूर कराएं, लेकिन हम उनसे कहेंगे कि अपनी बातों में, तकरीरों में इस तरह का तासुर नहीं दें, बिल्कुल नहीं, कि मुसलमान पसमानदा और गैर पसमानदा में बटे हुए हैं। हुजूमी तशद्दुद में मारे गए लोगों की माली मदद का इमारत शरिया बिहार ने ऐलान कर दिया है। इमारत शरिया हुजूमी तशद्दुद के मुतासर अफराद को कानूनी मदद भी फराहम करवाएगी। इमारत के मुताबिक इस ताल्लुक से काम शुरू कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि मुतासरीन को माली मदद के नाम पर 50,000 रुपया दिया जाएगा। वहीं कानूनी मदद के लिए इमारत की जानिब से एक टीम कायम की गई है। के लिए अदालती कार्रवाई में इमारत शरिया मदद करेगी ताकि कानून की बुनियाद पर उनको सही सज़ा मिले। इमारत मुकदमा लड़ेगी और उसमें जो भी खर्च होंगे इंशाअल्लाह इमारत शरिया उसको बर्दाश्त करेगी। दूसरा ये तय हुआ कि जो लोग भी शहीद हो रहे हैं, फी शहीद इमारत शरिया अपनी तरफ से उसमें 50,000 रुपये उनके वारिसीन को देगी। तो ये दो चीज़ें तय हुई हैं और इस पर काम शुरू हो गया है।
दिमागी बुखार के मामले में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज असेंबली में जवाब दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बीमारी के ताल्लुक से मुख्तलिफ राय है। उन्होंने ये भी कहा कि दिमागी बुखार से निजात के लिए माहिरीन की टीम तश्कील दी गई है ताकि बच्चों की हो रही अमवात पर काबू पाया जा सके। साथ ही लोगों में बेदारी भी फैलाने की कोशिश की जा रही है। हम सब के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो दुर्घटनाएं हुई हैं, इसके लिए हम सिर्फ शोक प्रकट नहीं कर सकते। यह बहुत ही गंभीर मामला है। पहले 20-25% के बीच में टीकाकरण होता था, अभी 84% से भी ज्यादा हो गया है। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि टॉप 5 देश में जो ऊपर के 5 राज्य हों जिसमें संपूर्ण टीकाकरण का, और टीकाकरण अगर नहीं करिएगा तो कहीं न कई प्रकार की बीमारियां गरीब बच्चों को हुई जाएगी जब जो टीकाकरण नहीं कराएगा। तो संपूर्ण टीकाकरण, तो इसको सब कुछ करेंगे। और आप जान लीजिए, जो हमने श्री कृष्ण मेमोरियल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो देखा हमने, मुझे बहुत तकलीफ हुई है। मुझे इस बात की तकलीफ हुई है कि हम उसको पहले क्यों नहीं देखे थे। और वहां जाने के बाद ही उस समय हमने तय किया 600 कुछ का वो बेड है। हमने कहा कि इसको भी, जैसे हम लोग नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को 2500 बेड का कर रहे हैं या IGIMS को 2500 बेड का कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल को भी 2500 बेड का करेंगे। और अभी इमीडिएट काम शुरू हो जाए और 1500 बेड का तो सबसे पहले इसको बना दे। उसके तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। नाज़रीन, आज मोदी हुकूमत ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जल शक्ति अभियान की शुरुआत की है और इस मुहिम के साथ जुड़कर न्यूज़ 18 नेटवर्क ने भी मिशन पानी की शुरुआत की है, जिसमें पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों को बेदार किया जाएगा और बताया जाएगा कि क्यों पानी बचाने के लिए उन्हें पानी का मुहाफ़िज़ बनना जरूरी है। पानी के बहरान से निपटने के लिए मोदी हुकूमत ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी मुहिम शुरू की है। इस मुहिम का साथ देते हुए न्यूज़ 18 नेटवर्क ने मिशन पानी की शुरुआत की है। मिशन पानी के बारे में आपको बताएं, लेकिन पहले आपको हुकूमत की मुहिम के बारे में जानकारी देते हैं। मोदी हुकूमत ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जल शक्ति अभियान शुरू किया है। इस मुहिम का पहला मरहला 1 जुलाई से 15 सितंबर तक चलेगा। दूसरा मरहला 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगा। स्वच्छ भारत मुहिम की तरह ही इसे अवामी हिस्सेदारी से चलाया जाएगा। जिस तरह से स्वच्छ भारत मिशन के सफल में के माध्यम से हमने एक बिहेवियरल चेंज का सफल कार्यक्रम इस देश में पूरा किया है, ये तय किया है कि भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी और उसके ऊपर के अधिकारी ऐसे वाटर स्ट्रेस ब्लॉक्स जिले जो आइडेंटिफाइड हैं उन सारे जिलों में जाएंगे। जल शक्ति अभियान के तहत मुल्क के 256 अजला में पानी के तहफ़्फ़ुज़ का काम मरकजी हुकूमत के बड़े अफसरान की निगरानी में किया जाएगा, जिसमें अवामी हिस्सेदारी के साथ इन अजला में रेन हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। एक तरफ मरकजी हुकूमत पानी के तहफ़्फ़ुज़ की इस मुहिम को अवामी तहरीक की शक्ल देने में लगी है, तो दूसरी जानिब समाजी जिम्मेदारी को समझते हुए न्यूज़ 18 नेटवर्क भी हुकूमत के साथ खड़ा है और मुल्क भर में मिशन पानी की शुरुआत कर दी है। प्यासी धरती, प्यासे लोग, घटते वाटर लेवल के साथ 4 दिन के एक बार आता था पानी और बढ़ती मुश्किलें। इन्हें बहुत तकलीफ है। इससे पहले कि एक एक बूंद को तरसे हम, सेव वाटर बनिए पानी के मुहाफिज। क्योंकि पानी की समस्या से देश को बाहर लाना चाहिए और पानी के संबंध में समाज को जागरूक करना भी उतना ही जरूरी है। मिशन पानी, अ नेटवर्क 18 इनिशिएटिव। मिशन पानी के तहत हमारा मकसद आवाम को बेदार करना है ताकि वो पानी के मुहाफिज बने और पानी की हिफाजत में मदद करें। इस मुहिम के तहत हम मुल्क भर में मौजूद अपने नुमाइंदों के जरिए माहिरीन की राय लेंगे, लोगों को बेदार कर बताएंगे कि हम सभी को पानी का मुहाफिज बनना कितना जरूरी है।
ऐसा हम बारिश के पानी को जमा करके और पानी की बर्बादी को रोकने जैसे छोटे छोटे कदम उठाकर कर सकते हैं। इसके अलावा उन लोगों और तंजीमों को भी मंजर-ए-आम पर लाएंगे जो पहले से पानी की हिफाजत में लगे हुए हैं। इस कदम से दूसरे लोग भी मुतासिर होंगे और पानी के मुहाफिज बनेंगे, क्योंकि मौजूदा वक्त में 60 करोड़ हिंदुस्तानी पानी की जबरदस्त कमी का सामना कर रहे हैं। साफ पानी की कमी के चलते सालाना 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में ये वक्त की अहम जरूरत है कि हम मुल्क के मुस्तकबिल के लिए पानी की हिफाजत की इस मुहिम से जुड़ें। तो आइए हमारे मिशन पानी से जुड़कर आप भी बनिए पानी के मुहाफिज।